ডে মোৰ ডে 2 হয় আৰু বৰ্তমান আছোঁ বিহাৰ পালোঁ আৰু এইপিনে বৰ্তমান ট্ৰেইনত উঠি গৈছিলোঁ ৰাতি একচুৱেলি ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই চ' অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু তাৰ হাতত ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই আৰু বৰ্তমান আছোঁ বিহাৰ আৰু দেখা আছোঁ বাৰু ক'ত যাম কি নগৰ ঘূৰিখিনি কৈ আছোঁ আৰু আজি হ'ল ডে 2 আৰু পিনে মই বৰ্তমান নামি গ'লোঁ অল্ড দিল্লী আৰু অল্ড দিল্লীৰ পৰা বৰ্তমান আহি পালোঁ মেট্ৰ' ষ্টেচন আৰু মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰা যাব লাগিব বৰ্তমান এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত ৰুম চাব লাগিব আৰু এইপিনে বৰ্তমান পাই গ'লোঁ গুৰগাঁও আৰু গুৰগাঁৱত মজাকৈ অকণমান ফ্ৰেছ ট্ৰেছ হৈ কিনে ওচৰে পাঁজৰে ক'ৰবাত ৰুম ল'ম ৰুমত গৈ কিনে লগ পাইছোঁ বলক দিল্লীত এনেকুৱা ট্ৰাফিক জাম মানে কি ক'ম আৰু বেছি মানে অভাৰ বহুত ট্ৰাফিক জাম The next morning. আৰু এইপিনে চাব পাৰিছে লাল কিলা যিটো গাড়ীৰ পৰা নানামো বহুত ট্ৰাফিক জাম আৰু একচুৱেলি দেৰি হৈ গৈছে চ' অকণ ইয়াৰ পৰা চাই লওক আপোনালোকে আৰু বৰ্তমান কেমেৰা লোৱা হৈ গ'ল মোৰ আৰু কেমেৰা লৈ আহি কিনে বৰ্তমান আছে জামা মছজিদ দিল্লীৰ জামা মছজিদ বহুত ফেমাছ মছজিদ হয় আৰু এইপিনে কুকুৰটোক চাওক ন কি পজিটিভ হৈ আছে আৰু পূৰা ভিৰ চাওক এতিয়া বহুত মাৰ্কেটটো বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয় কিন্তু 15 minutes later. আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ এয়াৰপৰ্ট আৰু এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত আহি পেলাই সিহঁতে দুজন আৰু ইয়াৰ পৰা মজাকৈ লগ লৈ আছে টিকেট লগ পাই গ'লোঁ একদম এয়াৰপৰ্টৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত মই থাৰ্ড ফ্ল'ৰত বিচাৰি আছিলোঁ আৰু এইপিনে এয়াৰপৰ্টৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ওকে আৰু দেখা পালে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি বৰ্তমান আহিব এয়াৰপৰ্ট আৰু এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এইপিনে দুজন পাই গ'লোঁ লগৰ বন্ধু আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ কিয় কালিৰ পৰা নতুন এটা এপিছ'ড আহি আছে The next morning. হাই ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং আৰু গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম UK আৰু উত্তৰাখণ্ড আৰু বৰ্তমান আছে উত্তৰাখণ্ড আৰু মজাকৈ আহি গ'লোঁ কিয় দিল্লীৰ পৰা ৰাতি আহিছোঁ আমি ওলাই কিনে আৰু বাছত ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই কিয় ৰাতি আৰু কি ভিডিঅ' কৰি মজাকৈ টোপনি মাৰি গ'লোঁ আৰু টোপনি মাৰি বৰ্তমান আহি গ'লোঁ UK আৰু ক'ত যাম গোটেইখিনি কৈ আছোঁ বাৰু আৰু ইয়াৰ পৰা আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ল এপিছ'ড 1 আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এইবাৰ পৰা ভাল পাব চাই কিনে আৰু বলক ভিডিঅ'টো আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ একদম মস্তি আৰু মজা একদম ফালি ট্ৰিপ হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা যাম ডাইৰেক্ট চাংক্ৰিলৈকে চাংক্ৰি মেবি আমি আবেলি যাই পাম চ' ৰাস্তা একদম ফেণ্টাষ্টিক ভিউ আহিব মুছৰি হৈ যাম আমি কেম্পটি ফুল দেখা পাব আপোনালোকে চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো গাড়ীতে আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান লাঞ্চ কৰিব লাগিব লাঞ্চ কৰিব এতিয়া হোটেল বিচাৰি পোৱা নাই আৰু কমচে কম 3 ঘণ্টা যাব লাগিব 3 ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰি গৈ আছোঁ আকৌ ভাত খোৱা পৰা গৈ কিনে আৰু মেইন জেগালৈ যাম এতিয়াও পোৱা নাই আধাও পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু আপোনাৰ গাড়ীৰ অৱস্থা চাওক চব টোপনি আৰু এইপিনে অকণমান ৰখি গ'লোঁ হোটেলত আৰু হোটেলত অকণমান লাইট অলপ খানা খাই লওক কি বেছি দুটা খানা খাম আৰু লাইট খানা খাম কিয় জাৰ্ণি কৰিব লাগিব ন যিমান পাৰোঁ লাইট খানা খোৱাটো ভাল বেছি নহয় ৰুটি আৰু মটৰ পনীৰ খাই কিনে হোটেলত ওলাই যাওঁ 15 minutes later. আৰু এইপিনে চাব পাৰিছে মুভিত দেখা যেন লাগিছে আৰু আজি ৰিয়েল লাইফত চাই আছোঁ কিবা এটা ভাল লাগি আছে আৰু ইয়াৰে ৰোডবোৰ এনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱা সৰু ৰোড এখন গাড়ী আহিলে আৰু এখন গাড়ী যোৱাৰ একেবাৰে জেগা নোহোৱা হৈ যায় দেখাই আছোঁ বাৰু গৈ কিনে আৰু মেইন লোকেশ্যন পোৱা নাই আমি আৰু
কমচে কম 8 পৰা 9 ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰিব লাগিব। আমি গৈ আছোঁ একেবাৰে লাষ্টৰ পাহাৰটো। ইয়াৰ পৰা অকণমান চাব পাৰিছে চাগে, পূৰা হোৱাইট হৈ আছে, পূৰা বৰফৰ পাহাৰ, বৰফেৰে ঢাক খোৱা মৰম লগা এটা পাহাৰ। আৰু এইখিনিলৈকে আমি গৈ কিনে দেখাই আছোঁ। চ' ফাইনেলি আহি গ'লোঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে লোকেশ্যন, আৰু হোটেলত মজা কৰি খানা চানা খাই ল'লোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা অকণমান ড্ৰোন ভিউ চাই লওঁ আহক, চাই কিনে লগ পাই আছোঁ। ओके सो फाइनली आम ट्रेकिंग स्टार्ट हो कालिर পৰা। सो काली जोर आगते आम गाइड जो आम लग যাব गाइड, सो गाइडे आमक आम ट्रेनिंग दी আছে और ट्रेनिंगবোৰ অকমান শুনি লওক। আপোনালোকে যদি আহে এইবিলাক ফলো কৰি আপোনালোকে আহিব। सो অকমান শুনি কিনে আৰু ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু কালিৰ পৰা লগ পাইছোঁ নতুন এটা এপিসোডত আৰু নতুন জাগাৰ সৈতে। সো শুনি লওক, অকমান আপোনালোকে শুনি লওক। তো আজি শুনি কিনে ভিডিওটো এইখিনি সমাপ্ত কৰিম। मैं मानवी चेन्नई से हूँ और ट्रैक तो कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है। हाँ। मैं नक्षत्र हैदराबाद से और फर्स्ट टाइम। मैं दीक्षिता चेन्नई से फर्स्ट टाइम। पुणे से फर्स्ट टाइम। Myself प्रवेश सिंह रावत एज अ ट्रैक लीडर फॉर हिमालयन हाइकर। ठीक है, मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है एडवेंचर फील्ड में। ठीक है, आपके साथ में जो हमारे साथ में रहेंगे एफएस राणा जी। एफएस राणा जी, इनको कम से कम ये लगा रहा हो 21 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये हाई एल्टीट्यूड गाइड है, जैसे कि यहाँ पे कई पीक पड़ती है, ब्लैक पीक, इन्होंने 10 से 15 बार उस पीक को क्लाइंब कर रखा। सतोपंथ, बहुत सारे, मतलब बहुत एक्सपीरियंस है। हम इनके सामने, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था जब ये इन्होंने ट्रैकिंग ज्वाइन किया था। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों, आपने ट्रैक बुक करवाया है तो आप लोग को पता है कि केदारकांठा लोग क्यों जाते हैं। जैसे खीर गंगा जाते हैं लोग, कसोल जाते हैं, तो आपका क्या हो गया, ये को पिकनिक हो गया। ठीक है, केदारकांठा में आप आ रहे हैं तो केदारकांठा में अगर आप आउटडोर से बाहर रह रहे हो, आप कैंपिंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी होगी जो आपको खुद सर्वाइव करनी पड़ेगी। ठीक है, आउटडोर से बाहर, जैसे आपको कैंप में रहने का हैबिट नहीं है, उतना एल्टीट्यूड में आप ऊपर गए नहीं है, वहाँ पे आपको थोड़ा ठंडा भी फील होगा। तो जो मैं आपको अभी बताऊंगा हेड गियर से लेकर बूट गियर तक, जो आपके सबसे अच्छे फ्रेंड रहेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ कि केदारकांठा लोग आते क्यों हैं, या केदारकांठा को मानते क्यों हैं, कैसे कैसे हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है। तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो बताते हैं, अगर आप इस ट्रैक पे जा रहे हैं, अगर आप आस्था की तौर पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका हो गया हो तीर्थाटन। अगर आप आस्था के तौर पे जा रहे हैं तो आपका हो गया तीर्थाटन में। ठीक है ना, अगर आप आउटडोर के बाहर रह रहे हैं, कैंपिंग एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है आउटडोर से बाहर, तो आपका हो गया हो ट्रैकिंग।
ठीक है ना। केदारकांठा की जो स्टोरी है वो हम बताते हैं आपको कि केदारकांठा इसलिए लोग आते हैं क्योंकि जो केदारनाथ मंदिर था वो केदारनाथ मंदिर इसी जगह पे बनना था केदारकांठा में, लेकिन भगवान शिव जी को ये जगह अपने लिए सेवने लगी क्योंकि उन्होंने सोचा चारों तरफ यहाँ पे बस्ती है, गाय एक सिरगा विलेज पड़ता है आगे, वहाँ से गाय ने आवाज लगाई तो उनकी जो तपस्या थी वो भंग हो गई, वो यहाँ से वो चलना शुरू किया उन्होंने केदारनाथ के लिए। तो भीम जी ने उनको रोकने की कोशिश की तो रुके नहीं, और वो केदारनाथ पहुँच के वो गाय के रूप में जब वो यहाँ से चले थे तो भीम जी ने उनका गाय पूंछ पकड़ लिया था, तो पूरा उन्होंने सर अपना पशुपतिनाथ में निकाला था जहाँ केदारनाथ बाबा का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ठीक है, केदारनाथ में भी भोले जी महाराज का एक मंदिर बना हुआ है। तो ये थी केदारकांठा की स्टोरी। रास्ते में आप गाइड है, आप गाइड रहेगा आपके साथ, तो आप गाइड से कुछ भी पूछ सकते हैं कि भैया ये ट्री कौन सी है या ये वर्ड कौन सी है। ठीक है, तो ट्रैकिंग करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं। आप क्रिकेट खेलते होंगे या कुछ फुटबॉल खेलते होंगे या कुछ भी प्रकार का आप गेम खेलते होंगे, तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप उस रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको पेनल्टी भी दी जा सकती है। आपको जब आप बैग पैक करोगे सबसे पहले आप नीचे डालेंगे लाइट वेट, लास्ट वाले फ्लोर में लाइट वेट, उसके ऊपर हैवी वेट, उसके बाद लाइट वेट, उसके बाद आपका जो दिन में आप खाते हैं, जैसे आपका चॉकलेट हो गया, आपका कैमरा हो गया। कैमरा ऐसा नहीं कि नीचे डाल दिया फोटो खींचने के लिए फिर बार बार ढूंढते रह रहे हैं, ऊपर होगा आपका, तो ठीक है ना, प्लेन से आपको रखा होगा तो आप तुरंत उसको निकाल सकते हो। और सबसे बैग पैक के सबसे ऊपर आपका होना चाहिए पोंचो। बिना गाइड को बताए आपने स्लाइड वहाँ नहीं करना है। ठीक है, आजकल क्योंकि जो स्नो है वो पूरा एकदम टाइट हो रखा है, अगर आपका स्पीड पकड़ गया तो आप दूसरी वैली में पहुंच जाएंगे। तो जहां गाइड आपको बोलेगा कि भैया यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हैं, तो आप भी वहीं पर ही स्लाइड करें। ठीक है ना, उस बेस कैंप में, उसके बाद आप बेस कैंप में पहुंचेंगे। बेस कैंप में आपका लंच होगा, लंच के बाद आधा घंटा या पौना घंटा आपको वहाँ रेस्ट मिलेगा। उसके बाद आप लोग अपना बैग उठा के आएंगे अरगांव के लिए। ठीक है, अरगांव में आपका नाइट स्टे अरगांव में होगा, आपका स्नैक्स डिनर जो प्रक्रिया पहले दिन से चलेगी पूरे लास्ट दिन तक वही प्रक्रिया चलेगी। ठीक है ना, अगली सुबह आप लोग ब्रेकफास्ट करके लंच के लिए आएंगे सांकरी। ठीक है, सांकरी में भी आपका लंच होगा, हमारी तरफ से स्टे आपका सांकरी में ही है। ठीक है ना, अगर जिस सांकरी में आपका स्टे होगा और दूसरे दिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके आप लोगों को जहाँ से हमने पिक किया है वहीं आप लोगों को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। ठीक है ना, ये थी आपकी हाइटनरी। ठीक है, इस हाइटनरी के बीच में आपके द्वारा कोई चेंज होता है कि माना कि आपकी जूड़ा के तालाब पहुंच गए और जूड़ा के तालाब में आपने बर्फ देख लिया, सब देख लिया और मन करेगा कि भैया मैं नीचे जाता हूँ, मेरा तो 4 दिन का है, होटल में रुक जाता हूँ, तो वो आपका डायरेक्टली पेबल होगा। ठीक है, होटल का बाकी खाना तो कंपनी अरेंज करवा देगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना, कोशिश करनी है कि अपनी जो हाइटनरी आपका पूरा जो अरेंजमेंट है वो पूरा आपका ऊपर हो चुका है। पहले दिन जूड़ा, फिर बेस, फिर अरगांव, तीसरे दिन, चौथे दिन यहाँ पर। ठीक है ना, तो अपनी हाइटनरी से पहले नीचे नहीं उतरना इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ, कोई मेडिकल इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है ना, तो ये थी आपकी मोटी मोटी हाइटनरी। ठीक है, इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हमसे एक्सपीरियंस से लोग अपनी बॉडी को सपोर्ट भी नहीं कर पाते ऊपर चढ़ने के लिए। अगर आपका बैग हैवी हो रहा है या आप नहीं खुद कैरी कर पा रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं। उसका जो चार्जेज है 300 रुपये पर कैंप साइड, यानी कि पूरे ट्रैक हो गया आपका 1200 रुपये। रास्ते से कोई अगर बैग देता है तो आपके सिचुएशन के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। ठीक है ना, ये था बैग का। बैग अपलोडिंग का आपने अगर हो सकता अभी आप बता देना, अगर अभी आप बैग पैक करके बता देना सुबह की कितना हैवी हो रहा, तो आप ऑफिस के आगे अपना नाम लिखवा के वहाँ पे बैग का पेमेंट भी करवा देना। ठीक है, और जिसके पास हमारी तरफ का कोई बैलेंस पेमेंट है वो अभी नीचे ऑफिस में आके वो जमा करवा देगा। ठीक है ना, ठीक है। और ये फॉर्म है सर आपके, ये लो, ये सबको भरना है एक एक को। ये लो जी, पेन को मामा আৰু এনেকৈ আমাৰ ছাৰতে আমাক অকণমান ট্ৰেইনিং দিলে, যিহেতু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম, বহুতৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম, বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছে। চ' কালিৰ পৰা নতুন এপিছড আমাৰ আহি আছে, একদম ধামাকা ব্লগ, সকলোৱে চাব, আশা কৰিছোঁ চবৰে ভাল লাগিব। চ' বাই বাই, লগ পাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'তে নেক্সট এপিছড। চ' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, লগ পাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'তে।